Good morning, students. My name is Manjot Singh. Today we will discuss the instruction set of PLC. We already discussed some part of the instructions. In the last lecture, we discussed basic instruction set and timer instructions. In today's lecture, we will know about counter instructions and comparison instructions. So let's start. These are some basic instructions which we use for input and outputs. The name, examine if closed and examine if open are, these are input instructions. OTE, OTL, OTU and OSR output instructions. OSR is for only one scan cycle, activates for one scan cycle. These are the symbols of various instructions such as this is the XIC capacitor type symbol, XIO capacitor type symbol with the diagonal line. Then we have a OTE output energize instruction sign symbol, OTL, OTU and then OSR one shot rising. उसके बाद हमने करा था टाइमर इंस्ट्रक्शन सेट. टाइमर इंस्ट्रक्शन के अंदर हमारे पास तीन टाइप का टाइमर होता है, रिटेंटिव टाइमर, ऑन डिले टाइमर एंड ऑफ डिले टाइमर. सो सभी के अंदर एक जैसी ही वैल्यूज होती हैं. फर्क ये है कितना है कि रिटेंटिव टाइमर जो है उसके अंदर वैल्यू स्टोर करके रखता है जब पावर चली जाती है तभी. बट इन केस ऑफ ऑन डिले एंड ऑफ डिले देयर इज नो रिटेंशन ऑफ वैल्यूज. ऑन डिले जो है वो डिले करता है ऑन प्रोसेस के लिए, और ऑफ डिले किसी मशीन को ऑफ करने के लिए डिले प्रोवाइड किया जाता है. नाउ in today's topic we will discuss counter instruction set. Here we have two types of counters, counter up and counter down. CTU count up, count down CTD. So let's start. And then we have a reset instruction. Reset instruction resets counters and also timers and other instructions also. So let's start with counter first. This is the symbol of count up instruction. Here what we have, firstly count up, it indicates the name of counter, then counter number जो हम उसको लगाना चाहते हैं C3:0. So this is the first address of counter. First counter address is C30. Then we have a preset value 10, जो भी आप नंबर देना चाहते हैं जिसके बाद हमारा जो काउंट है वो स्टॉप हो जाए. कम्युलेटिव वैल्यू जितना काउंट हो उसको इंडिकेट करेगा. काउंटर और टाइमर के अंदर फर्क क्या है कि काउंटर जो है वो किसी अगर आप बोलो भी चेंज के लिए आप काउंट लिख सकते हो, लेकिन टाइमर जो है वो टाइम को शो करता है. अगर आपने किसी स्विच को 3 बार ऑन ऑफ किया तो दैट काउंट्स 3. ओके, किसी प्रोसेस को ऑन ऑफ करना उसको हम काउंट में गिनेंगे. लेकिन अगर टाइमर की बात करें तो सेकंड्स के अंदर जो चीज वेरी हो रही है वो टाइमर के अंदर आती है. सो डेफिनेशन, इट इंक्रीमेंट्स द वैल्यू at each false to true transition and retains the accumulated value when the instruction goes false or when power cycle occurs. अब इसके अंदर जो वैल्यू है वो रिटेन करके रखता है जो पोजीशन चेंज होती है उसके अंदर भी. So as I told you that its count up, it starts from 0 to 10. मैक्सिमम वैल्यू जो हमने प्रीसेट के अंदर लिखी वहां तक काउंट करेगा. उसके बाद जो इसकी आउटपुट हम ले सकते हैं और ये इंक्रीमेंट करता रहेगा जितनी बार हम फॉल्स टू ट्रू उसका ट्रांजिशन करेंगे. कि हमने किसी चीज को ऑफ से ऑन किया, दोबारा से ऑफ कर दिया, तो ये वैल्यू स्टोर करके रखेगा. It is an instruction that counts false to true transition. When this transition happens, the accumulated value is incremented by 1 count. जब एक बार हम उसको चेंज करेंगे तो वो हमारा काउंट बढ़ा देगा. और इसको रीसेट किया जा सकता है रीसेट इंस्ट्रक्शन के साथ. और इसका जो मैक्सिमम जो रेंज है उसमें ओवरफ्लो बिट भी ट्रू होती है.
So here what how we use this instruction, bit 0 to 7 used for internal, update accumulation value, bit 10, bit 11 underflow bit, overflow bit, done, count down is enabled, count up. You can use these for outputs. Okay, काउंट, ये मैं आपको लैडर डायग्राम में बना के बता रहा हूँ कि कैसे हम इसको देख सकते हैं। So these are the rails. Here we have a switch. यहाँ पे हमारा जो है वो काउंटर आ जाएगा। काउंटर को मैं सी के साथ लिख रहा हूँ, यहाँ पे आउटपुट आएगी। जो भी आप आउटपुट लेना चाहते हो उसका आप यहाँ पे बताओगे। ओके, कि काउंट जब वो कर रहा है, काउंटिंग कर रहा है, उस टाइम के अंदर आपकी आउटपुट आनी चाहिए। जब वो डन हो जाए काउंटिंग प्रोसेस उसका, तब आनी चाहिए। जैसा कि हमारा हमने टाइमर के अंदर देखा था। तो डन, जब हमारा काउंट पूरा हो जाएगा तो हमारी जो आउटपुट है वो यहाँ पे आ जाएगी। अब काउंट किसको कर रहा है, वो इस स्विच को काउंट कर रहा है कि कितनी बार वो ऑन ऑफ हुआ। जितनी बार वो ऑन ऑफ हुआ वो यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा। प्रीसेट वैल्यू के अंदर हम कितनी बार ऑफ करने पे आउटपुट चाहते हैं या ऑन करने पे आउटपुट चाहते हैं वो हम प्रीसेट में लिखेंगे। अकम्युलेटिव वैल्यू को बताएगा कितनी बार ये हो चुका है, ठीक है। और यहाँ पे हमारी जो है आउटपुट उसके अकॉर्डिंगली हम ले सकते हैं। सो दिस इज द काउंट अप इंस्ट्रक्शन and this is the ladder diagram with count up instruction. By using done and cu count up, when count up is enabled you can get the output for the whole time, but after count is done the output will be off. आगे बढ़ते हैं। Next is count down. Count down, it decrements the cumulative value at each first to true transition. फर्क दोनों में क्या है, काउंट अप में जीरो से लेकर हम मैक्सिमम वैल्यू की ओर बढ़ते हैं, यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू से जीरो की ओर हम आएंगे। तो काउंट डाउन जो है हमारा वो मैक्सिमम वैल्यू जो प्रीसेट के अंदर लिखी वहां से शुरू होकर जीरो तक पहुंचेगा। और इसको भी हम रीसेट कर सकते हैं रीसेट इंस्ट्रक्शन के साथ, और ये भी ट्रू टू फॉल्स या फॉल्स टू ट्रू ट्रांजिशन को ही काउंट करता है। और इसका जो यूज है वो आप कर सकते हो, ओवरफ्लो के लिए भी कर सकते हो, अंडरफ्लो है, डन, काउंट डाउन इज enabled, काउंट अप इज enabled, एंड अपडेट accumulation, underflow bit. You can use the counter by using these addresses. Next we have a reset. रीसेट, जिस भी चीज को आप रीसेट करना चाहते हैं उसका एड्रेस आप यहाँ पे मेंशन करोगे। जो एड्रेस है अगर काउंटर का है तो काउंटर को मेंशन करोगे, अगर टाइमर है तो किसी स्विच को रीसेट, किसी भी प्रोसेस को रीसेट करना है, यू कैन जस्ट राइट दैट एड्रेस हियर ऑन द रीसेट इंस्ट्रक्शन। रीसेट अकम्युलेटेड वैल्यू स्टेटस बिट ऑफ टाइमर और काउंटर, ये रीसेट कर देगा टाइमर और काउंटर और अकम्युलेटेड वैल्यू। Use reset instruction to reset timers or counter. When reset instruction is enabled, it resets the on delay timer, retentive timer, counter up, counter down by giving the same address on the reset instruction. जिस भी चीज को आप इसमें रीसेट कराना चाहते हो उस चीज का, चाहे टाइमर है आपका चाहे काउंटर है, उसका आप एड्रेस रीसेट इंस्ट्रक्शन के ऊपर मेंशन कर दो तो वो उसको रीसेट कर देगा। तो ये था हमारा काउंटर और काउंटर इंस्ट्रक्शन सेट। आगे बढ़ते हैं तो नेक्स्ट